स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन सुन रहे थे। क्या कुछ इस संबोधन की खास बातें रहीं और इस संबोधन से क्या कुछ खास निकल करके आता है, भविष्य के लिए इसमें क्या संकेत हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। बहुत बहुत स्वागत है शेखर जी आपका। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें, उन्होंने दो महापुरुषों का खास तौर पर अपने संबोधन में जिक्र किया। महात्मा गांधी, जिनकी 150वीं जयंती की पूरी तैयारी चल रही है, और गुरु नानक। दो महापुरुषों का जिक्र खास तौर पर जो जिस संदर्भ में किया गया, इसमें आप क्या संदेश देखते हैं देशवासियों के लिए मौजूदा परिस्थितियों में, जो परिस्थिति चल रही है उसमें? नहीं, जब गांधी जी की उन्होंने जिक्र किया जी, उन्होंने हमें याद दिलवाया कि गांधी जी की जो अप्रोच थी, गांधी जी की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि विकास कैसी होनी चाहिए जी, प्रकृति के साथ कैसे एक वार्तापूर्ण, एक हार्मनी में कैसी होनी चाहिए, और साथ साथ वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। इसका मतलब है जब विकास की हम बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम बड़े इंडस्ट्री को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, हमारी कृषि क्षेत्र को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, उस समय हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे पर्यावरण, हमारे जल, हमारे वायु, उसका कोई नुकसान ना हो, उसका कैसे उसकी प्रोटेक्शन मिले, वो बड़ा मैसेज था। और गुरु नानक जी का, उन्होंने गुरु नानक देव जी का जिक्र करते हुए ये कहा कि हम इस साल 550वीं उनकी जन्मदिन मनाएंगे जी। और उनकी जो मैसेज रही है गुरु नानक जी का, वो सबसे ज्यादा करुणा का था, बिल्कुल कंपैशन का, काइंडनेस का। वो हमें हर डीलिंग्स में, एक नागरिक के रूप में, एक घर में एक बेटा के रूप में, एक बाप के रूप में जी, परिवार में हो या परिवार के बाहर हो, कि वो जो चीज हमें आनी चाहिए हमारे लाइफ में डे टू डे डीलिंग्स में, तो उसकी उन्होंने जिक्र किया। बिल्कुल। एंड इफ यू टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन, वी गेट अ क्लियर कट मैसेज for this recent decision taken by government on Jammu and Kashmir, where President says that now the time has come to give all the benefits to the citizens of Jammu and Kashmir and Ladakh, whether it is RT, that is right to education, whether it is RTI, right to information. On triple talaq also he has said that now it is a big step in favor of the the women society. So what is the message, special message, if we see in this regard at present situation, at present circumstances which is going on actually? The big message from the president to the people of Jammu and Kashmir and Ladakh is now they have joined the mainstream. Right. They can fully avail of all the benefits which are available to people of other states of India. They will also get all the benefits. Those benefits will include all the laws will get applied, all affirmative actions, quota for OBC, SC, ST, that will be available, and recently passed important laws like triple talaq, which is for empowerment of women, that also will get applied. And whatever way they felt or they were kept away from some of the benefits of being part of the rest of the country, that will now be available to them. And therefore, now they are on a new path of development, and to the fullest potential of every citizen of that state will enjoy same facilities, same respect, same regards as every citizen of other state. I think this is a very big message. Yes. And he also mentioned even RTI. मतलब एक नागरिक को जो पूरा हक मिलना चाहिए, टू इन्फॉर्मेशन, जो सूचना, जो अधिकार मिलना, सरकारी व्यवस्था के बारे में जो जानकारी चाहिए, ये भी अभी उनको उपलब्ध होगा जी। The next point which the president actually mentioned about the grand success of the general election just a few months back, that he said that this is actually the democracy, the success of democracy which we see in our country. So it is actually a message to those people also who somehow try to sabotage the democracy in our country, whether it we find in whether the extremists inside the country or from outside also, they want to destabilize. So it's a big message to them also.
Yes, indeed, it's a very big message because the President Ramnath Kovind ji is conveying to us Okay. that elections are not simply about choosing government. Yeah. कोई सरकार चुनने का केवल एक प्रक्रिया नहीं है, जी. ये अपने आप में हर चुनाव, मतलब जब से हम स्वाधीन देश बन गए तब से लेकर आज तक जितने चुनाव हुए, एक एक चुनाव हमारी विकास की यात्रा में एक नया चैप्टर है, एक बिल्कुल. नया दौर है. तो उस सिलसिले में उनका कहना था जी. कि एक प्रकार से जो उम्मीदें जो हैं कि भविष्य के लिए वो उम्मीद रिन्यू हो जाते हैं. आवर होप्स गेट रिवाइव्ड विथ एवरी इलेक्शन, दे गेट रिन्यूड. आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज बिकॉज elections are not just about politics. Elections are not just about forming the government every 5 years. This is about renewing our hope and faith in the system that is India. जी. The faith in the government, faith in the governance, faith in the व्यवस्था that is there before us. बिल्कुल. As citizens of this country. बिल्कुल. एक अगला जो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु का जिक्र किया, वो जिक्र ये था कि जिस तरह से कि अभी पिछले संसद के सत्र में जिस तरह का वातावरण देखने को मिला, जिस तरह का कामकाज हुआ, जिस तरह का एक रचनात्मक वातावरण देखने को मिला, वो अपने आप में एक अलग कहानी कहता है. और उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों के विधानसभा भी अगर ऐसा प्रदर्शन करें तो देश में जो सुधार की गति है और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की गति है वो बहुत तेज हो जाएगी. बिल्कुल. देखिए, हमने देखा अभी जो सत्र खत्म हुआ जी, उसमें लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदन में जो कामकाज की जो परसेंटेज जी 100 से ऊपर हुआ है. बड़े इंपॉर्टेंट कानून और काफी सालों के बाद, काफी साल बाद अच्छी बातचीत हुई है, डिबेट हुई है, फिर बिल पास किए गए और लंबे समय बैठे. क्योंकि पहले क्या खबर आती थी, भाई इतना मैन आवर लॉस्ट जी, इतने पैसे वेस्ट हो गए. लेकिन अभी सुर्खियां अलग है कि लगातार 11:30 मतलब 11:45 तक हाउस बैठे रात को. बिल्कुल. और कानून पास करते गए. और इस बार इतने नए जो एमपी चुन के आए हैं, सबको मौका मिला अपनी बात रखने की. और प्रेसिडेंट का यही आह्वान है कि स्टेट्स में भी, स्टेट असेंबली में भी कि इस तरह के स्पिरिट हो जहां पे सत्ताधार पार्टी हो या ऑपोजिशन हो, दोनों मिलकर जो उस राज्य के लिए जो जरूरत है, खास करके विकास यात्रा. क्योंकि एक रनिंग थीम हमने देखा आज राष्ट्रपति का भाषण में जी, विकास का क्या क्या पहलू है और विकास जो यात्रा है वो विकास यात्रा को उसकी गति कैसे और तेज हो, तो उसकी उन्होंने कई बातें आज रखी है. बिल्कुल बिल्कुल. He also talked about the rapid development and the transparent system. And he also mentioned that how the government is trying to reach the person which is actually at the last in the queue. And now he's also said that this is the responsibility of the citizen also to grab the opportunity, to grab the things provided by the government. So this is also a big message to the each and every citizen on the eve of Independence Day. बिल्कुल. I think he listed what the government is doing to make the lives of common people better. Whether it is providing housing to all, yes, whether it is providing drinking water, okay, whether it is providing electricity, whether it is providing educational facilities, okay, medical facilities. Yeah. He was listing these are the ways in which the government is trying to improve the lives. But at the same time, yeah, what is our duty as a citizen, our duty as a conscientious citizen, एक नागरिक के नाते हमारे पर क्या जिम्मेदारी है. फिर उसका उन्होंने वर्णन किया. जब कोई नागरिक अगर सरकारी संपत्ति पे कोई डैमेज करना चाह रहा है या खेत पहुंचना चाह रहा है, उस समय अगर एक कॉन्शियस सिटीजन अगर उसको रोकने की कोशिश करे, उसको रोके, उसका रोल जो है, भूमिका उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे सेना बॉर्डर पे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं. मुझे लगता है कि ये अपने आप में देखिए एक कॉमन सिटीजन भी एक सोल्जर के, एक सेना जवान के जैसे काम कर रहे हैं. बिल्कुल. जब कॉन्शियस हो जाते अपने राइट्स का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात. उनका कहना है कि सिविक माइंडेड सिटीजन, यानी जो नागरिक अपने दायित्व, अपने अधिकार और अपने जो व्यवस्था है उसकी रक्षा करने में
अगर वो सोचकर काम करे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रहा है अपने देश के लिए। बिल्कुल सही बात है। खास तौर पर उन्होंने एक बात का और जिक्र किया जो कि अभी सरकार के एजेंडे में भी बिल्कुल फोकस पर है, वो है जल शक्ति। याद कीजिए प्रधानमंत्री ने किस तरह से संसद में संबोधित करते हुए कहा था कि बहुत बड़ा काम है, लेकिन हम काम को हाथ में लेने से घबराते नहीं हैं। और जल शक्ति का आज राष्ट्रपति के संबोधन में भी जिक्र होना, ये अपने आप में सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है कि सरकार किस तरह से इस पर बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। मंत्रालय तो अलग से बना ही दिए गए हैं, लेकिन प्राथमिकता में भी सबसे ऊपर शायद ये रहेगा। ये अपने आप में संदेश है जल शक्ति को लेकर के। बिल्कुल है। और उन्होंने जल सुरक्षा की बात की, यानी वाटर सिक्योरिटी। बिल्कुल, जैसे हम बाकी फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, वैसे वाटर सिक्योरिटी, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में ये एक अंडरलाइन करता है कि इस देश में चुनौती का है जल व्यवस्था को लेकर जी, और हमें क्या करना है। अब हम देख रहे हैं कि कई इलाके पे ड्राउट की हालत है, बिल्कुल सूखे पड़े हैं, कई इलाके में इतने बारिश हुए हैं तो इतना वहां फ्लड हो रहा है, हम देख रहे हैं कि फ्लड की क्या हालत है। तो हमें ऐसी पॉलिसी की निर्माण करनी चाहिए जिसपे सरकार भी काम कर रही है, ताकि हमारी जल जो ज्यादा, जब बारिश ज्यादा होती है वो पानी वेस्ट ना हो, वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, वो हम कैसे करें जी। तो प्रेसिडेंट का आज मेंशन करना इस आज उनके एड्रेस में, मुझे लगता है कि सरकार, जैसे आपने जिक्र किया, सरकार ने इसको ऑलरेडी प्रायोरिटी दी है। बिल्कुल, एक बजट में भी जिक्र किया गया, अलग से मंत्रालय बनाया गया, संसद में प्रधानमंत्री का भाषण हुआ और जो नए सेक्रेटरी जो बने वाटर डिपार्टमेंट के, भरतलाल जी, वो आज पहले राष्ट्रपति के साथ काम कर रहे थे, उन्हीं को ही वहां पोस्ट किया गया है कि नए डिपार्टमेंट को संचालन करने में। बिल्कुल। He also talked specially about two classes in our society. One is obviously the women empowerment and women freedom, and another is youth energy. He mentioned especially on these two things. What is the message behind this? What actually he was trying to give the message to the society, and especially these sections of the society, women as well as youth? I think when he spoke about the civic conscious citizen, okay, then after that he mentioned about what is the cultural ethos of this country. Yes. And how we should remember that cultural ethos. And that cultural ethos is respecting everybody. And how किस तरह के हमारे व्यवहार होता है एक दूसरे से, घर के अंदर, घर के बाहर जी। और हमारी जो फिलॉसफी अगर रही है, कोर फिलॉसफी जो है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो जी। तो मतलब आज राष्ट्रपति का ये बात रखना कि जब हम हर जो कमजोर लोगों की बात कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, उसके पीछे यही वो फिलॉसफी है जी। लिव एंड लेट लिव, सबको मौका दीजिए, सबको अपने मतलब जैसे वो रहना चाहते हैं उनको रहने दीजिए। बिल्कुल। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो परंपरा यही रही है कि किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी भाषा का हो, सही बात, तो ये कोई हमारे लिए कोई आइडेंटिटी लेकर हम कभी ऐसे नहीं सोचते। हम अपने आप को एक मानव जाति के रूप में देखते। बिल्कुल। और प्रेसिडेंट का यही अपील था कि इस चीज को मतलब कभी भूलिए मत जी। एक उन्होंने अपने संबोधन को खत्म करने से पहले जिक्र किया कि भारत का जो भारत की प्रतिबद्धता है ना प्रकृति के संरक्षण को लेकर के, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के, उसका एक सबसे बड़ा सबूत तो अभी सामने आ गया ना। जब बाघों की गिनती हुई तो ये पता चला कि पूरी दुनिया में जितने बाघ हैं उसके 3/4 बाघ तो हमारे यहाँ हैं। तो जो दुनिया के बाकी देश अगर बड़ी बड़ी कई बार बातें करते हैं, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया, तो ये दिखाता है कि किस तरह से हमारी संस्कृति का वो हिस्सा है कि हम प्रकृति के साथ जीना जानते हैं और उसको संरक्षित करना जानते हैं। तो ये मैसेज ना सिर्फ, ये संदेश ना सिर्फ अपने देश के अंदर बल्कि बाहर के लिए भी था। बिल्कुल। देखिए मतलब मनुष्य जीवन और जानवर की जीवन और उसके साथ जो भी प्रकृति का जो है क्रिएशन, सबके साथ एक हार्मनी में ये करना, अपना जीवन बिताना, ये हमारी एक सीक्रेट ऑफ लिविंग है, एक लाइफ की कैसे आगे बढ़ाना। और यही हम विश्व के लिए दिखाने वाली चीज यही है। सही। तो उसका उन्होंने ये किया। और लास्ट में उन्होंने बच्चों की भी बात की कि बच्चों की बात सुनने के लिए हमें
हमेशा तैयार रहना तैयार चाहिए रहना और चाहिए। ध्यान देना चाहिए, ध्यान गंभीरता देना से। चाहिए। और जैसे अंग्रेजी में कह रहे थे, वी मस्ट हैव द कैपेसिटी टू लिसन टू द वॉइस ऑफ द फिबलेस्ट। सबसे कमजोर, सबसे नाजुक जो आवाज है, उसकी सुनने की भी हमें क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैसेज है कि और ये लोकतंत्र समय की इससे अच्छी खूबसूरती भला क्या हो सकती है। बस बिल्कुल। और इस समय जब कहीं हम ऐसी सुनते हैं कि लगता है कि सोसाइटी में क्या इतना टेंशन आ गया है, मुझे लगता है ये अपने आप में एक मंत्र है कि कैसे टेंशन दूर करें। जी। और देश जब प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इतनी चीजें हो रहे हैं, सरकार लगी हुई है, तो हम एक नागरिक के रूप में क्या कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू हार्मोनियस प्रॉस्परस इंडिया। I think that is a clear-cut message which also Prime Minister time and again actually mentions in his address, that if India is gaining something, this is for all. This is for the neighbor countries as well. This is for all the friend countries, which India is ready to pass on actually. बिल्कुल। एंड आई थिंक इंडियाज द ग्रोथ एंड प्रोमिनेंस एज सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर मीन्स इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री टर्म्स, Yeah. बट इन टर्म्स ऑफ We have seen the yoga, the success of yoga also. Yes, in well-being, the whole holistic living. Yes. These are all our aspects of India's soft power. Whether it is IT knowledge, whether it is our engineering skills, whether it is our, as you mentioned, Ayurveda, yoga, all that we are offering to the world, and we have never ever tried to close our hands and say we won't part with anything. We are always willing to share. I think that is also the message, and very soon, as the President mentioned, we are going to reach the moon. Obviously. Chandrayaan 2 is on its way. Yes. And that is the way the Prime Minister, the President's message is, look, even, and there also he brings this point, even as we are reaching for the moon, excelling in our technology capability, but we also have to remind ourselves of our traditional values of karuna, of compassion. That is, he actually ended with the 3-4 lines actually. Yes, of Subramanya Bharati. Yes. Who was one of the famous poets who fought for country's independence. Obviously. बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी आने के लिए और ये चर्चा करने के लिए, और जो राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में, संबोधन में जो ख़ास बातें थी उसको समझने में मदद करने के लिए हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। तो ये राष्ट्रपति के संबोधन पर, जो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति महोदय ने संबोधन दिया, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अनुमति दीजिए, नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों